Good morning, students. Today we are going to start our new unit, that is classification of elements and periodicity in properties. So in this unit we are going to cover historical development of periodic table, modern periodic table, its advantage and limitations, cause of periodicity, atomic and periodic properties of elements, that are atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity, and the factors affecting these properties. So let's start with first topic of this unit, that is historical development of periodic table. So basically what do you mean by periodic table? ये आप 9th और 10th क्लासेस में भी पढ़ चुके हो. Periodic table, basically the table in which we classify all the known elements on the basis of their properties. So that elements with similar properties are grouped together in a vertical column and dissimilar elements or elements with dissimilar properties are separated from each other. Is it clear? Periodic table में बेसिकली हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई करते हैं. तो जिसमें एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको हम एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करेंगे और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको आप अलग से रखेंगे. ठीक है. तो periodic table in which we classify all the known elements on the basis of their properties, so that elements similar physical properties are grouped together in a vertical column and dissimilar elements are separated from each other. Is it clear? Now further the question arises that what is the need of this classification? Why we need to classify elements? So what is the need of classification of elements? एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत थी? अब एज द पैसेज ऑफ टाइम न्यू एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड. तो बाय 1800 वी हैव ओनली 31 एलिमेंट्स नोन. बाय 1869 around 63 elements were discovered, and now we have total 118 elements known. तो अब एक साथ इतने सारे एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी करना, फर्दर उनकी प्रॉपर्टीज को लर्न करना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था. सो टू स्टडी
the properties of these elements in a systematic way. Scientists need to classify the elements. Clear है ये? So what is the significance of classification? Generally for systematic study of elements we need to classify elements. ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को एक सिस्टेमैटिक वे में स्टडी करने के लिए ही हमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जरूरत हुई. तो फर्दर जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फर्दर लीड टू पीरियोडिक टेबल. तो अब जो रिसेंटली हम पीरियोडिक टेबल करते हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले काफी अटेम्प्ट्स हुए टू क्लासिफाई एलिमेंट्स. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. हम जो पहले अटेम्प्ट्स हुए और बाद में उनकी लिमिटेशंस क्या थी, किसकी वजह से वो फेल हो गए, वो स्टडी करेंगे. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय डोबेनियर which is also known as Dobenier triad. And in his classification he arranged similar elements in a group of 3. And the atomic weight of these elements were either nearly the same or the atomic weight of middle element. Is arithmetic mean of first and third element. तो डोबनियर ने जो अपनी क्लासिफिकेशन दी, उसने क्लासिफिकेशन में थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. ठीक है, तो जो 3 सिमिलर एलिमेंट्स थे उनका एक ग्रुप बनाया और उसने कहा कि मिडल वाले एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है दैट शुड बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल लिथियम, sodium, potassium. We know atomic weight of lithium is 7, sodium 23, potassium 39. तो यहाँ से जो सोडियम का एटॉमिक वेट है, सोडियम मिडल एलिमेंट है, तो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है शुड बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. लिथियम और पोटाशियम के अरिथमेटिक मीन के इक्वल आना चाहिए. तो 7 + 39/2 which is 23, which is equal to the atomic weight of middle element, that is sodium. Similarly, second triad which is given by Dobenier is chlorine, bromine and iodine. Atomic weight of chlorine is 35.5, bromine 80, iodine 127. तो यहाँ से फर्दर अगर आप ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हो फ्रॉम chlorine and iodine, then it should be equal to the arithmetic mean of chlorine and iodine 35.5 plus 127 divided by 2. तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी that is 81.25. अब ये जो वेट है ये एग्जैक्टली ब्रोमीन का जो थ्योरेटिकल वेट है उसके इक्वल तो नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली सेम है. थर्ड ट्राइड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम.
एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 87.5, बेरियम 137. So atomic weight of strontium by arithmetic mean of calcium and barium, it from 40 plus 137 divided by 2, it is 88.5, which is approximate equal to the theoretical weight of strontium. ठीक है, तो डोबनियर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उसने कहा कि जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट के अर्थमेटिक मीन किया तो इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेट सेम होगा. इज इट क्लियर? बट डोबनियर ट्राइड, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बाद में फेल हो गई. तो व्हाट इज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डोबनियर ट्राइड? जो डोबनियर ट्राइड की ये जो क्लासिफिकेशन थी, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट. डोबनियर ने जो अपनी क्लासिफिकेशन दी थी दैट इज गिवन इन 1817. ठीक है, और उस टाइम पे हमारे पास बहुत कम एलिमेंट्स ही नोन थे, अराउंड 35-36 एलिमेंट्स ही हमारे पास थे. तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन ठीक थी, लेकिन फर्दर न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, उसके बाद न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी, जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज हुआ, तो ये क्लासिफिकेशन हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं थी. इज इट क्लियर? फर्दर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. Newland gave his classification in 1865. ठीक है, and according to Newland, when he arranges lighter elements in order of their increasing atomic weight, then he found that properties of every 8th element is just similar to first element, to its first element. ठीक है, न्यूलैंड ने बेसिकली क्या किया? न्यूलैंड ने लाइटर एलिमेंट्स को एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया, और वहां से फर्दर उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में प्लेस करेंगे, तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी, जस्ट लाइक इन म्यूजिकल स्केल. ठीक है, जैसे म्यूजिकल स्केल में सा रे गा मा पा दा नी 7 नोट्स है. 7 नोट के बाद जो 8th नोट आएगा दैट इज सा. अगेन सा फर्दर फर्स्ट नोट के सिमिलर है. तो वैसे ही जब हम एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज करेंगे, तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर आएगी, एंड दैट इज नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. ऑक्टेव मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट. इज इट क्लियर? Example, in musical notes sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Again sa re ga ma pa da ni. तो ऐसे ही न्यूलैंड ने जब एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हमें पता है फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, नियोन विच इज अ नोबल गैस। बट न्यूलैंड ने हमें ये क्लासिफिकेशन 1865 में दी थी और उस टाइम तक हमारे पास नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। जब न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन दी तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन में नोबल गैसेस नहीं आएंगी। फ्लोरीन के बाद फर्दर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन डिस्कवर नहीं हुए था तब तक, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो यहां से जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, यहां तक ये 7 एलिमेंट्स आ गए। तो लिथियम का जो 8th एलिमेंट आएगा डेट इज सोडियम। सोडियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर थी लाइक दैट ऑफ लिथियम। सिमिलरली बेरिलियम के 8th एलिमेंट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम के सिमिलर। बोरोन का 8th एलिमेंट एल्यूमिनियम, कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग जो 8th एलिमेंट होगा डेट इज सिलिकॉन। सिमिलरली सोडियम के कोरस्पॉन्डिंग 8th एलिमेंट, अगर आप सोडियम से स्टार्ट करते हो तो पोटाशियम। क्लियर है ये? बट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये क्लासिफिकेशन भी फर्दर फेल हो गई। तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव? यही कि दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम हैविंग एटॉमिक मास 40। ठीक है, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद जो न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हैवियर एलिमेंट डिस्कवर होते गए, जब हमने उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में प्लेस किया तो प्रॉपर्टी हर एक 8th एलिमेंट की सिमिलर नहीं थी। बट इसकी जो क्लासिफिकेशन थी, न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी जिसने हमें पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था। बट पीरियोडिसिटी क्या होगी? Periodicity in properties means repetition of properties after a certain regular interval. ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होती जाएंगी दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर थी। तो न्यूलैंड की जो प्रॉपर्टीज थी, न्यूलैंड की जो क्लासिफिकेशन थी, उसने हमें सबसे पहले पीरियोडिसिटी का आइडिया दिया। एंड फॉर this classification Newland also received Davy Medal in 1887. Is it clear? Now next classification is Lothar-Meyer arrangement. Lothar-Meyer gave his classification in 1869, and Lothar-Meyer basically studied the physical properties of elements like atomic weight, atomic volume, density, melting and boiling point. And for his classification, firstly he plot a graph between atomic volume of element and atomic weight. एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट लिया और वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम। तो इसका जो ग्राफ आया
से इसने कुछ इस टाइप का ग्राफ कंक्लूड किया। तो जब उसने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, तो वहां से उसने ऑब्जर्व किया कि जो सिमिलर एलिमेंट, जो एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, वो ग्राफ में सेम पोजीशन पे आए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द पीक ऑफ द कर्व। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, all electropositive element occupy the peak of the curve. Less electropositive element like beryllium, boron, magnesium, calcium, strontium, barium. Less electropositive elements or alkaline earth metal occupy the descending position of the curve, and most electronegative element which is now known as halogens. ठीक है, most electronegative element like fluorine, chlorine, bromine, iodine, they occupy the ascending position of the curve. And the transition elements and metalloids, all these occupy the ये लोएस्ट पीक ऑफ द कर्व। ठीक है, कर्व में सबसे नीचे की तरफ प्लेस थे। कह रहे ये तो लोथर मेयर ने बेसिकली एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, और अपने ग्राफ से उसने फर्दर ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स है विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व, और इन्हीं क्लासिफिकेशन के बेस पे फर्दर उसने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई। एंड लोथर एंड मेयर सेज दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मीन जैसे जैसे हम एटॉमिक वेट चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होंगी। और जब लोथर मेयर ने एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ प्लॉट किया, तो एटॉमिक नंबर के साथ भी जो ग्राफ था वो ऑलमोस्ट सेम था। okay, तो लोथर मेयर अरेंजमेंट क्या थी? इन लोथर मेयर अरेंजमेंट ही प्लॉटेड अ ग्राफ between atomic weight and atomic volume of elements, and observe that elements with similar properties occupied the similar position in curve. For example, most electropositive elements like alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium are present at the peak of the curve. Second, less electropositive elements beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium
occupy the descending position of the curve and most electronegative elements like fluorine, chlorine, bromine, iodine, occupy ascending position of curve. Is it clear? तो फर्दर अपनी कंक्लूजन्स के बेस पे लोथर मेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की, और जब उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में एलिमेंट्स को प्लेस किया तो फर्दर जो प्रॉपर्टीज है एक रेगुलर इंटरवल के बाद पे रिपीट हो रही थी. क्लियर है ये? इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आई दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट इज Mendeleev's periodic table. And Mendeleev gave his periodic table in 1869. लोथर मेयर में भी हमने किया कि लोथर मेयर ऑल्सो गेव हिज periodic table in 1869. तो अब मेंडेलीव और लोथर मेयर दोनों ने अपना जो periodic table है वो एक सेम टाइम पीरियड में दिया. दोनों सेम टाइम पीरियड में एलिमेंट्स की अलग अलग स्टडी कर रहे थे. ठीक है, दोनों ने अपना अलग अलग वर्क किया और दोनों की स्टडी का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम था. दोनों ने ही कहा दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. बट लोथर मेयर ने अपनी जो क्लासिफिकेशन थी वो मेंडेलीव की क्लासिफिकेशन देने के बाद फर्दर दी. ठीक है, लोथर मेयर की दोनों सेम टाइम पीरियड पे तो कर रहे थे, लेकिन जब मेंडेलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन दी उसके जस्ट बाद लोथर मेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन दी. तो जो पीरियोडिक टेबल का मेन क्रेडिट है एंड मेन क्रेडिट फर्दर गोज टू मेंडेलीव. ठीक है, तो जो फर्स्ट रियल ब्रेक थ्रू आया इन पीरियोडिक टेबल दैट इज गिवन बाय मेंडेलीव. क्लियर है ये? And Mendeleev periodic table is based on Mendeleev's periodic law. मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है. जब मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया उस टाइम पे we had only 63 elements discovered. तो मेंडेलीव ने टोटल 63 प्लेइंग कार्ड्स लिए. डिफरेंट प्लेइंग कार्ड्स लिए. उसने हर एक प्लेइंग कार्ड पे एलिमेंट का सिंबल, एक ऑक्सीजन के लिए, सोडियम के लिए Na, ठीक है, एलिमेंट का सिंबल, उसका एटॉमिक वेट और उसकी जो प्रॉपर्टीज है. बेसिकली उसने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया, दैट प्रॉपर्टी ऑफ देयर हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स. ठीक है, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स क्या होंगे? हाइड्राइड कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड कंपाउंड विथ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनेंगे दैट इज नोन एज ऑक्साइड. हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनेंगे दैट इज नोन एज हाइड्राइड. तो उनकी फर्दर उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज मेनली डिस्कस की.
और उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ही क्यों प्रॉपर्टीज ली, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और वो ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो उसने 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, 63 प्लेइंग कार्ड्स लिए, हर एक प्लेइंग कार्ड पे एलिमेंट का सिंबल, उसका एटॉमिक वेट और उसकी प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ हाइड्राइड और ऑक्साइड ली। उसके बाद उसने जिन कार्ड्स पे एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम थी, उन कार्ड्स को वॉल पे एक वर्टिकल कॉलम में लगा दिया। लाइक अगर मैं कहूँ कि सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के सिमिलर है, तो इनकी जिन जिन कार्ड्स की प्रॉपर्टी सिमिलर आती गई, वो एक वॉल पे उसको वर्टिकल कॉलम में अरेंज करता गया। देन ही ऑब्जर्व दैट द elements are automatically arranged in order of their increasing atomic weight। तो वहां से उसने अपना लॉ दिया, which is known as Mendeleev periodic law। And according to Mendeleev periodic law, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। ठीक है, physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic weight, means when we arrange the element in order of their increasing atomic weight, then properties of elements are repeated after a certain regular interval। periodic function का क्या मतलब है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करेगी, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज periodicity in properties। क्लियर है ये। और इसी लॉ के ऊपर फर्दर उसने अपनी periodic टेबल दी, which is known as Mendeleev periodic table, and this is Mendeleev periodic table। ठीक है, तो इसमें टोटल 7 हॉरिजेंटल रोज है। हॉरिजेंटल रोज को कहा जाता है पीरियड। ठीक है, जस्ट 7 हॉरिजेंटल रोज आर नोन एज पीरियड, एंड देयर आर टोटल 9 वर्टिकल कॉलम्स, 9 वर्टिकल कॉलम इंक्लूडिंग 0 कॉलम। ठीक है, और इन वर्टिकल कॉलम्स को फर्दर हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, देयर आर टोटल 9 वर्टिकल कॉलम विच आर नोन एज ग्रुप्स। So according to this Mendeleev periodic table, what are the main characteristics of Mendeleev periodic table? Main characteristics क्या आ जाएंगे? There are total 9 vertical columns, 9 vertical columns which are known as groups। और 9 में आपका एक 0 ग्रुप भी इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग 0 ग्रुप, एंड 0 ग्रुप इज फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दी थी उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी, ये बाद में डिस्कवर हुई थी, तो उसने एक अलग से 0 ग्रुप का नाम दे दिया। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स ऑल्सो। जो फर्स्ट 8 ग्रुप थे उसको मेंडेलीव ने रोमन सीरीज में लिखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। And first 7 groups are further subdivided into 2 subgroups, like first A, first B। जनरली जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला आएगा डेट इज A और राइट हैंड साइड पे B। ठीक है, तो फर्स्ट A एंड फर्स्ट B, सेकंड A, सेकंड B, थर्ड A, थर्ड B, फोर्थ A, फोर्थ B, फिफ्थ A,
5th B, 6th A, 6th B, 7th A, 7th B। और उसके बाद जो 8th ग्रुप है, 8th ग्रुप को उसने सब डिवाइड नहीं किया 2 ग्रुप्स में, बट 8 ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे इन अ ग्रुप ऑफ 3। और ये जो 9 एलिमेंट्स थे, ऑल दीज एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसने कहा कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑल द एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उसकी आई that it include total 7 horizontal rows। 7 horizontal rows which are known as periods। ठीक है, और एक जैसे जैसे हम जो 7 horizontal rows थी टोटल इस टाइप से, इन horizontal rows को उसने नेम दिया पीरियड का। और पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, और यहाँ पे इन सबकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ग्रुप में एलिमेंट्स जो आएंगे, दीज एलिमेंट्स आर ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। पीरियड में जितने एलिमेंट्स है सबकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ठीक है, सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो जो आपकी फर्स्ट मेन एडवांटेज थी, दैट इज सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन अ वर्टिकल कॉलम और हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। तो अगर हम एक ग्रुप का एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी करते हैं तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो उसने हमें सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की सिस्टेमैटिक स्टडी में हेल्प की। सेकंड, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। अभी हमने किया, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बिना नोबल गैस को एक अलग से ग्रुप दिया, विच इज नोन एज जीरो ग्रुप। थर्ड, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये भी हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेट मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेसेस रखे, ब्लैंक स्पेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। लाइक बोरोन के बाद ब्लैंक स्पेस था, एल्यूमिनियम के बाद, सिलिकॉन के बाद। और उसने कहा कि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो इनके जो प्रीवियस एलिमेंट्स है उनके सिमिलर होगी। ठीक है, तो इन ब्लैंक स्पेसेस का नाम उसने प्रीवियस एलिमेंट, इनके जो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स हैं उन्हीं के बेस पे किया। लाइक द ब्लैंक स्पेस विच इज आफ्टर बोरोन, इट इज नेम्ड एज इक्का बोरोन। इक्का संस्कृत वर्ड है विच हैव मीनिंग नेक्स्ट टू बोरोन, मीन्स द एलिमेंट which comes next to boron. The blank space which placed after aluminium is known as Ika aluminium, and after silicon it is named as Ika silicon. और उसके बाद ही एलिमेंट डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टीज जो मेंडलीव ने ऑलरेडी डिस्कवर की थी, जो मेंडलीव ने हमें ऑलरेडी बताई थी कि प्रॉपर्टी इनके सिमिलर आएगी, उनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम थी। सो नाउ इका बोरोन इज नेम्ड एज स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम इज नेम्ड एज गैलियम,
and Ica silicon is named as germanium. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका. नेक्स्ट इज correction of doubtful atomic weight. Now Mendeleev has helped in correction of some doubtful atomic weight. ठीक है. और now Mendeleev has helped in correcting the atomic weight of some elements like beryllium. ठीक है. जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी उस टाइम पे हम बेरिलियम का वेट कंसीडर करते थे 13.5. तो अगर बेरिलियम का वेट 13.5 है तो हमें पता है डेट पीरियोडिक टेबल, अभी तक जितनी भी पीरियोडिक टेबल आई है, ऑल द पीरियोडिक टेबल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. तो अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, देन बेरिलियम शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन. कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, नाइट्रोजन का 14 है. देयर वाज नो वेकेंट स्पेस इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन. एंड वी नो वी कैलकुलेट एटॉमिक वेट by the product of equivalent weight and valency. Equivalent weight 4.5. और उस टाइम पे हम वैलेंसी को रोंग लेके चलते थे. बेरिलियम की वैलेंसी तब ली जाती थी 3. रोंगली टेकन. सो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से एटॉमिक वेट की वैल्यू आएगी 13.5. तो मेंडेलीव ने बेसिकली जो वैलेंसी है, वैलेंसी को करेक्ट किया, वैलेंसी को 3 से 2. तो जब वैलेंसी 2 आएगी तो फ्रॉम हियर एटॉमिक वेट बिकम 9. ठीक है. तो बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो 13.5 से करेक्ट किया 9 पे. अब अकॉर्डिंग टू 9, नाउ बेरिलियम इज प्लेस्ड बिटवीन लिथियम एंड बोरोन हैविंग एटॉमिक वेट 7 एंड 11. ठीक है. तो अगर हम बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 लेके चलते हैं तो इट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, बट देयर इज नो वेकेंट स्पेस बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन. सो मेंडेलीव बेसिकली करेक्टेड द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम फ्रॉम 3 to 2. क्लियर है ये? नेक्स्ट, बट फर्दर देयर आर सम डिफेक्ट्स इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. So what are the main defects in Mendeleev periodic table? First defect is position of hydrogen. हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी. उसने कहा कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सब सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं. तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में प्लेस किया गया अलोंग विथ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. ठीक है. तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इनके सिमिलर भी है, बट हाइड्रोजन शो सम सिमिलैरिटी विथ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑल्सो विच आर प्रेजेंट इन 7th A ग्रुप. तो अब हाइड्रोजन अगर उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे देखें तो वो फर्स्ट ए ग्रुप में भी आ सकता है और 7th A ग्रुप में भी. तो अब किस ग्रुप में उसको रखा जाए, उसकी पोजीशन को उसने क्लियर नहीं किया. और ये सेम जो इसका डिफेक्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. Now Mendeleev said that he arranges the element in order of increasing atomic weight, and we know isotopes are having same atomic number but different atomic mass or atomic weight.
Like hydrogen contain 3 isotope, protonium, deuterium and tritium, 1h1, 1h2, 1h3. एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होगा बट एटॉमिक वेट डिफर है. तो अगर मेंडेलीव ने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया तो आइसोटोप सबका एटॉमिक वेट डिफरेंट है. तो हर एक एलिमेंट के आइसोटोप को एक डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल में. तो व्हाई आइसोटोप डिड नॉट गेट अ सेपरेट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, उसको मेंडेलीव जस्टिफाई नहीं कर पाया. नेक्स्ट थर्ड, anomalous pair of elements. Now according to Mendeleev that elements are arranged in order of their increasing atomic weight. तो जो एलिमेंट पहले प्लेस है उसका एटॉमिक वेट कम होना चाहिए, जो बाद में उसका एटॉमिक वेट ज्यादा होना चाहिए. बट अगर हम कुछ केसेस में देखें लाइक आर्गन देन पोटाशियम, the atomic weight of argon is 40, atomic weight of potassium is 39. तो आर्गन का एटॉमिक वेट पोटाशियम के एटॉमिक वेट से ज्यादा है बट आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर पोटाशियम. सिमिलरली कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल. तो कोबाल्ट इज 58.9 एंड निकल इज 58.7. कोबाल्ट का एटॉमिक वेट निकल से ज्यादा है. तो अब ये एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से ज्यादा है, ये पहले प्लेस क्यों हुए, उसको मेंडेलीव जस्टिफाई नहीं कर पाया. नेक्स्ट, सम dissimilar elements are grouped together and some similar elements are separated from each other. Separated from each other. तो अगर आप मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हो तो वहां पे एक फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ग्रुप, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ग्रुप में फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एलिमेंट्स प्रेजेंट है विच आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. और उसके साथ फर्स्ट बी ग्रुप में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्रेजेंट है विच आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और इनको हम नोबल मेटल्स भी बोलते हैं. तो अब ये फर्स्ट ग्रुप के ही सब ग्रुप्स में प्रेजेंट है दोनों एलिमेंट्स. अब एक ही ग्रुप में दो डिफरेंट एलिमेंट्स, एक ही ग्रुप में अब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है वो प्लेस थे. और अब इनके सिमिलर जो एलिमेंट है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के सिमिलर मरकरी इज फर्दर प्लेस्ड इन सेकंड बी ग्रुप. तो नाउ द एलिमेंट विद दिस सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप एंड एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप. तो अब इनकी पोजीशन को भी मेंडेलीव एग्जैक्टली जस्टिफाई नहीं कर पाया कि इसका रीजन क्या है. नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ ग्रुप 8 एलिमेंट. अब हमने पढ़ा था डेट इन 8th ग्रुप देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3. और ये जो 9 एलिमेंट्स है ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. तो इनको 3-3 के ग्रुप में क्यों अरेंज किया गया? बाकी सारे ग्रुप फर्दर 2-2 सब ग्रुप में डिवाइड किए गए और 8 ग्रुप में 9 ट्रांजिशन एलिमेंट 3-3 के ट्राइड्स में क्यों अरेंज किए गए, उसके लिए भी मेंडेलीव ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी. सो दीज आर द मेन डिफेक्ट्स इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक, तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो फर्दर न्यू पीरियोडिक टेबल आई दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो ऑल दीज जो हमने आज की दैट इज डोबनियर ट्राइड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर मेयर अरेंजमेंट, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, all these are historical development of periodic table. Now with the passage of time, according to our need further new discoveries हुई
और एक नई पीरियोडिक टेबल आई। तो जो रिसेंट पीरियोडिक टेबल है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आई होप you clear the concept. Okay, thank you and have a nice day.